What's up, guys? I am back with another episode. Sorry for being away for a long time. Actually, I had a lot of submissions and a lot of work to do, and I had to sort out a lot of things, including the IPL finals. Hi, guys, I'm back. Navratri khatam hone aayi hai. It's Dussehra tomorrow, and happy Dussehra in advance to all of you. Happy Navratri to all of you. I hope your festive season is going good. हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, बहुत सारी चीजें पे डिस्कस कर लिया, बहुत सारे वीडियोस बन गए सीट के ऊपर. These are the last two videos on seat that you guys are going to have. After these two videos, I will be moving on to the next series of NID. I'll be focusing more on NID related videos, NID related preparation tips and etc. what I followed last year. And आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है रिसोर्सेज जो आपको नहीं पता. What are the resources which you don't know? नवरात्रि से ये चल रहा है. We started with 9 evils and 9 problems you have to avoid for the seed exam. Then there are 9 questions that you guys had which I answered for you, and today we'll be doing 9 resources that you guys do not know of and they might be helpful to you in some way or the other. Today it's going to be episode number 9 with 9 resources that you guys do not know that will help you in your seed preparation. Episode number 9, boys and girls. Okay, let's start with the first resource that you guys don't know, and that is the very obvious and the very important Stuff You Look. Stuff You Look बहुत लोगों को पता है. Stuff You Look is फटाकड़े क्यों फोड़ रहे हो? Stuff You Look एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो आई थिंक जितने भी लोग डिजाइन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए. बट अगेन, सिंस लॉट ऑफ पीपल हैव कम टू मी विद वेरी कॉमन क्वेश्चंस, आई जस्ट थॉट दैट आई शुड पुट दिस इन माय लिस्ट एज वेल. Stuff You Look is an open source blog for people preparing for design exams, seed, USEED, NID, NIFT, etc. They have also added a few other entrance exams as well which are not design. Stuff You Look बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग है. उस पे आपको बहुत चीजें मिलेगी. You will find paper solutions, links for books, blogs about almost everything related to design. Step-by-step solutions of each and every paper, seed, USEED and NID. Topic-wise questions and again solved questions including explanations for all the topics. Completely free. The best part about Stuff You Look that it is completely free. You can do everything you want. आज के 9 resources जो है मैं चाहता हूँ कि आप इनको पूरी तरह A to Z खंखोल लो. Dig well into these 9 resources. When I tell you a resource, make sure you dig deep into that resource and make sure you have studied Make sure you have studied everything from there. Stuff You Look पूरा का पूरा पढ़ लेना, पूरा का पूरा. Open Stuff You Look and make sure you go through each and every link they have, each and every page they have, each and every blog they have. जितना भी resources Stuff You Look पे पूरा का पूरा free है, उसको अच्छे से utilize करो. Stuff You Look is your first resource of the day. Next resource is Kafal Studio. Kafal Studio भी एक free resource है. It is a YouTube channel for those who don't know. Kafal Studio बहुत टाइम से डिजाइन प्रिपरेशन में लोगों की हेल्प कर रहा है. It's a team of people completely focused towards this full time. वो आपको डिजाइन एंट्रीज एग्जाम में बहुत हेल्प करता है. They also offer coaching if you want to opt for. But they do have a lot of free material on YouTube as well. They have a lot of topics on which they have made free YouTube videos. You'll find logos, GK, trigonometry, material study, calligraphy, painters, typography, Gestalt principle, color theory, current affairs, probability, shape counting, almost everything. So you'll find a lot of videos that are made for free for you guys on the Kafal Studio channel on YouTube. Go to YouTube, type Kafal Studio and just go through the entire channel. Make sure you watch each and every video. कोई भी video मत छोड़ना. Everything is free information for you guys. Next is my favorite, DQ Labs. I have mentioned this already in a couple of videos, but yes, if people have missed it, DQ Labs, edge.dq labs is a crazy resource for people preparing for design entrance exams. अगर आपको इन्वेस्ट करने की इच्छा है तो उसका एक फ्री वर्जन भी है जिसमें आपको कुछ चीजें फ्री मिलेगी, बट एक पेड वर्जन भी है. इट्स अराउंड 7 to 8,000 rupees and I think वो बहुत अच्छा कन्वीनियंट रिसोर्स है because in 7 to 8,000 they are giving you a lot of material to study. Not only study, but they have a very well structured UI on their website where you can solve those papers like it's an actual seed paper. And I feel मेरे हिसाब से पार्ट ए के लिए DQ Labs से बेटर रिसोर्स कोई है ही नहीं. मैंने खुद इन्वेस्ट किया था DQ Labs में at that point of time and I had solved almost more than 500 papers on that particular site. मतलब repeated basis पे topic wise, question papers, sample papers, seed, USEED, NID, everything. मैंने सब solve किया. If you guys want to invest, DQ Labs is a wonderful resource. Your next resource for the day, resource number 3. अब आप YouTube पे ही हो, Kafal Studio देख रहे हो तो एक काम करो, एक और चीज देख लो और वो है YouTube पे एक अमेजिंग टिप बता दो तुम लोग को. वो ये है कि अगर पार्टी के लिए प्रिपेयर करना है, पार्टी के लिए वीडियोस चाहिए, पार्टी के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, तो इससे बेटर कोई चीज नहीं है. जस्ट गो टू YouTube एंड टाइप IQ and aptitude tests and you will get
these channels जो आपको बहुत 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 हेल्प करेंगे. Career Vids, Career VIDZ, that is a channel which is a foreign channel. वो इंग्लिश में बोलता है लेकिन बहुत अच्छा समझाता है मेरे हिसाब से. वो चैनल पे अगर आपने 25-30 वीडियोस जो उनके क्वांटिटेटिव के हैं, लॉजिकल के कुछ 20 वीडियोस है, स्पेशल एबिलिटी के कुछ 10-15 वीडियोस, अगर आपने वो वीडियो के सब चैनल्स के प्लेलिस्ट देख लिए, यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर मोर देन व्हाट सीड एक्सपेक्ट्स. तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम है, रोज के 2 वीडियो भी देखोगे तो आपका एटलीस्ट 1 महीने में पूरा का पूरा चैनल हो जाएगा. करियर विद इज एन अमेजिंग चैनल. अनदर चैनल इज करियर राइड. करियर राइड भी बहुत अच्छा चैनल है. इट्स एन इंडियन चैनल बट इट्स अ वंडरफुल चैनल. इट हैज ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो डिजाइन एग्जाम में पूछते हैं. लॉजिकल रीजनिंग हो गया, विजुअल एबिलिटी हो गया, आईक्यू टेस्ट हो गए, बहुत सारे शेप काउंटिंग, बहुत सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो गए. और एक चैनल है ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर एवरीवन. ये भी चैनल बहुत ही बढ़िया है. इसके ऊपर कितने सारे वीडियोस है आईक्यू के ऊपर, इतने सारे लॉजिकल रीजनिंग के वीडियोस है. जो क्वेश्चंस आपको सीड में आते हैं वो सिमिलर क्वेश्चंस यही चैनल ने अच्छे से एक्सप्लेन करके सॉल्व कैसे करते हैं और बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स भी बताए हैं. सब देख लो, सब सॉल्व कर लो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास. अगर आपको हिंदी में पढ़ना है और इंग्लिश में दिक्कत होती है तो देयर इज समवन कॉल्ड मयूर मोघे. मयूर मोघे का एक चैनल है जो हिंदी में ये सब लॉजिकल रीजनिंग और आईक्यू टेस्ट एबिलिटीज की चीजें समझाता है और हिंदी में बहुत अच्छा पढ़ाता है. तो उसका चैनल देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. और लास्ट वाला है अड्डा 247. अड्डा 247 इज अ चैनल स्पेसिफिकली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स. बट अगर आपने ध्यान से देखा है तो एप्टीट्यूड टेस्ट, बैंकिंग एग्जाम्स, जॉब के इंटरव्यू के क्वेश्चंस, प्लेसमेंट के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, ये सब बहुत सिमिलर है अपने डिजाइन के पार्ट ए से. तो 24/7 अड्डा 24/7 इज अ चैनल जो बैंकिंग एग्जाम में फोकस करता है. इफ यू डिग डीप इनटू दैट चैनल यू विल फाइंड अ फ्यू वीडियोस जो लॉजिकल रीजनिंग पे और आईक्यू एबिलिटी पे ही फोकस्ड है. आई थिंक यू शुड सॉल्व ऑल ऑफ दोस टू. मैंने वो देखे थे, मैंने वो अपने टाइम पे सेव करके रखे थे. गो टू अड्डा 24/7, गो टू करियर राइड्स, गो टू करियर विड्स, गो टू मयूर मोघे, गो टू ऑल दीस चैनल्स एंड मेक श्योर यू सी ऑल ऑफ दोस वीडियोस. जितने एग्जांपल सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेटर है. ओके, अगला रिसोर्स, ये भी बहुत बढ़िया रिसोर्स है और ये थोड़ा सा सीक्रेट रिसोर्स है. ये है DSource. DSource इज द वेबसाइट ऑफ IIT बॉम्बे, जिसके ऊपर हर एक प्रोजेक्ट जो IIT में किया जाता है ये प्रोजेक्ट वहां पे अपलोड किया जाता है. दे आर ऑल्सो कोर्सेज अवेलेबल. देयर आर लॉट ऑफ केस स्टडीज दैट IIT स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स एंड एवरीबडी एट IIT हैव सॉल्व्ड, IDC स्पेसिफिकली. तो ये जो है इट्स एन ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे IDC का IIT बॉम्बे का पूरा काम उन्होंने सॉर्ट करके रखा है. फन फैक्ट, लास्ट का क्वेश्चन जो था आइकॉन डिजाइन का सीड 2021 पेपर के लिए, आइकॉन डिजाइन, द क्वेश्चन वाज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट फ्रॉम DSource. दैट स्क्रीनशॉट वेंट वायरल आफ्टर वी फिनिश्ड द एग्जाम. ये एक प्रोजेक्ट था. ये प्रोजेक्ट के अंदर एक PDF में एक पेज था. वो PDF के पेज में से उन्होंने आइकॉन डिजाइन का क्वेश्चन पूछा था. So if you guys really want very valuable information, this might be time consuming but it's going to help you a lot. DSource पूरा का पूरा चार्ट लो. I just mean चार्ट लो पूरा का पूरा, मतलब सब चीजें देख लो DSource पे. You will find a lot of things on DSource. You will find courses, resources, case studies, showcases about each and every faculties, all the work that they have done. And you will find a lot of department-based projects, मतलब animation, interaction, product, visual communication, सबका अलग करके रखा है. और उन्होंने एक सेक्शन पे, तो एक सेक्शन पे क्लिक करो, हर अपने फील्ड के रिलेटेड चीजों को देखो, उनके प्रोडक्ट्स देखो, उनके एप्स देखो, उनके प्रॉब्लम्स देखो, उनके सोल्यूशंस देखो. Go through everything. So you will find a lot of resources there. क्या पता आपका नसीब हो, आपने कोई प्रोजेक्ट देख लिया हो, उसमें से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई. अगला रिसोर्स, अगर DSource की वेबसाइट देखा है IIT के, तो NID की भी वेबसाइट है. NID का खुद का स्टूडेंट पोर्टफोलियो का एक पूरा वेबसाइट अलग से दिया हुआ है. ऑल यू हैव टू डू इज गो टू NID का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, कीप स्क्रॉलिंग डाउन अंटिल यू सी अ टैब व्हिच सेज स्टूडेंट पोर्टफोलियो. क्लिक ऑन स्टूडेंट पोर्टफोलियो, विल टेक यू टू अ पेज वहां पे हर एक स्टूडेंट का NID से काफी टाइम पहले से, ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका से लेकर रिसेंट अभी तक हर एक स्टूडेंट का काम स्ट्रीम वाइज बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ है. यू गाइस आर लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन, स्केचेस कैसे होते हैं, पोर्टफोलियो में कैसे डालते हैं. इफ यू गाइस वांट आइडियाज, इफ यू वांट गुड कंटेंट टू रीड, वैल्यूएबल चीजें पढ़नी है, आप NID के पोर्टफोलियो के वेबसाइट पे जाओ. ये पोर्टफोलियो के लिए नहीं है, दिस इज प्योरली फॉर योर क्रिएटिविटी, दिस इज प्योरली टू इंक्रीज एंड बूस्ट योर क्रिएटिव माइंड, इनोवेशन. अगर आपको इनोवेटिव आइडियाज चाहिए तो जो प्रोजेक्ट्स पे IITians काम कर रहे हैं वो आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर अप्लाई द सेम सॉल्यूशंस, द सेम काइंड ऑफ सॉल्यूशंस. यहाँ से कोई फीचर निकाल लिया, यहाँ से कोई आइडिया निकाल लिया, उसको अपने सॉल्यूशन में डाल दिया पेपर में, आपके तो निहाल हो गए. ओके, टू गो आखिरी 2 रिसोर्सेज. द 8th रिसोर्स आई एम गोइंग टू टेल यू इज योर फ्रेंड्स. आपके फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जो आपको नहीं पता. मैं आपको बताता हूँ क्यों. आपका कोई तो फ्रेंड होगा जो MBA के लिए पढ़े, आपका कोई तो फ्रेंड होगा जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, PCS के लिए, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ा होगा. उनके पास बहुत सारी बुक्स मिलेगी. डोंट इन्वेस्ट योर पेरेंट्स मनी इन बाइंग ब्रांड न्यू बुक्स. अगर आपको आगे पोएम चाहिए, कोई भी ऐसी बुक चाहिए जो कैट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग के लिए है, आपके फ्रेंड्स के पास बहुत सारी बुक्स मिलेगी. ये मैंने खुद किया था. मैंने खुद अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को मैसेज किया था कि अगर कोई एग्जाम दे रहा है MBA की, कैट की, मैंने खुद
कैट की बुक में से, MBA की बुक में से और RK में से, ये सब बुक्स में से मैंने मेरे पार्टी के लिए पढ़ाई की थी। उसमें हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे सॉल्व करने को, एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स माइट कम इन एग्जाम। ये सब ऐसे कौन सा एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रॉब्लम्स है जो आपको आ सकते हैं एग्जाम में। सो मेक श्योर दैट यू आस्क योर फ्रेंड्स कि अगर कोई भी बैंकिंग एग्जाम, MBA एग्जाम, कैट, GMAT, कोई भी एग्जाम दे रहा हो, अगर उसमें लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट, IQ रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हो तो दैट इज अ गोल्ड माइन फॉर यू। जिसने एग्जाम दी हुई है उससे आप बुक्स बोरो भी कर सकते हो, तो आप बुक्स अपने फ्रेंड से ले सकते हो। योर फ्रेंड्स आर योर बिगेस्ट रिसोर्स, रिमेंबर योर सर्कल मैटर्स अ लॉट। ओके, आखिरी रिसोर्स और ये सरप्राइज रिसोर्स है, द लास्ट रिसोर्स इज योरसेल्फ। आप खुद एक रिसोर्स हो फॉर दोज पीपल who are struggling with sketching, जिनको स्केचिंग में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको बहुत सारे लोग को मैं बोल रहा हूँ कि आपके प्रपोर्शंस गलत है। स्टडी yourself. For example, मतलब I had done this myself. This is also a secret I'm letting out. मैंने 3 बहुत important चीजें की थी because I had a weak point which was human anatomy. So I realized the best way to study human anatomy is to study myself. So what I used to do, number 1, first thing I used to look at my own hand. मैं पहले जब sketch करता था, मैं अपने खुद के हाथ को देख कर sketch करता था. So if I have to draw my own hand, I used to place my hand in one place for at least 5 minutes and draw that angle, change the angle a little bit, draw it again, change it a little bit again, draw it again, change it again, draw it again, change it again, draw it again. ऐसे करते करते मैं करता था. मैं प्रोडक्ट्स पकड़ लेता था हाथ में. मैंने कोई प्रोडक्ट पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पानी का ग्लास पकड़ लिया, मैंने पानी का ग्लास पकड़ लिया, अब मैं इसको स्केच करूंगा, ये दिखता कैसे, मेरे हाथ में इसका स्केल क्या है। द पॉइंट बीइंग कि आप अपने आप को रिसोर्स की तरह यूज कर सकते हो। दूसरी चीज जो मैंने की थी, मैंने अपने खुद की एक एक्सप्रेशन शीट बनाई। व्हाट एवर यू डू, प्लेस अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू, ट्राइपॉड नहीं तो ऐसे कहीं ऐसे बैलेंस करके रख लो अपने कैमरा सामने। उसके बाद आप खुद के फोटोज निकालो अलग अलग एक्सप्रेशंस में, ट्राई टू मेक डिफरेंस। दिस इज अ वेरी फन वे टू स्टडी एक्सप्रेशन शीट्स। अपने खुद के एक्सप्रेशंस बनाओ बहुत सारे, टेक 20, 25, 30 फोटोज ऑफ योरसेल्फ इन डिफरेंट एक्सप्रेशन एंड मेक अ कोलाज आउट ऑफ। अब वो कोलाज बनाने के बाद ट्राई टू स्केच योरसेल्फ। That's the best way, क्योंकि it's going to make you understand कि आपने जो एक्सप्रेशन किया था उसमें आपकी आईब्रो कितनी हिली थी, आपका फेस कैसे मूव हुआ था, आपके लिप्स कितने वाइड हुए थे, आपका फेस कितना श्रिंक हुआ था, कितना वाइड हुआ था। All of this study, the best way to do it is to look at yourself, अपने आप को देखो। तीसरी चीज ये थी कि सेम जगह आप फेस कैच कर सकते हो, बॉडी के साथ कर सकते हो। मैंने अपने फोन को अपने टेबल पे रख के मैं दीवार के पास आके खड़ा हो गया था और मैंने जाके 20 या 30 अलग अलग पोजेस दिए, ऐसे 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 ऐसे। मैंने बहुत सारे पोजेस दिए और मैंने एटलीस्ट 50 फोटो निकाले थे खुद के, उसमें से मैंने 20 शॉर्टलिस्ट किए और मैंने वो 20 पोजेस खुद बनाए बैठ। तो अगेन, यू योरसेल्फ आर अ ग्रेट रिसोर्स। अगर आपको चीजें नहीं मिल रही है बनाने को, खुद को बनाओ, दैट इज द बेस्ट वे। इससे बेटर रिसोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैट्स इट गाइस, आज मैंने आपको बताया 9 रिसोर्सेज जो आपके बहुत 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 काम आ सकते हैं। ये 9 रिसोर्स में से मुझे पता है कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको पहले से पता होंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टफी लुक इज अ वेरी 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 फेमस ब्लॉग, बट बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता था कि सीट का कोई सिलेबस नहीं होता। वो स्टिल वेटिंग कि सीट सिलेबस भेजेगा या आपको सीट का सिलेबस मिलेगा। सीट का कोई सिलेबस नहीं होता। द पॉइंट बीइंग, इवन थो दे आर वेरी कॉमन पॉइंट्स, आई चोज टू कीप देम इन दिस वीडियो बिकॉज़ मेरे हिसाब से अगर किसी को ये नहीं पता हो तो स्टफी लुक इज अ गोल्ड माइन। अगर आप पहली बार स्टफी लुक पे जा रहे हो, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव इट, क्योंकि इस पे इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स है। आप जो क्वेश्चंस खुद को पूछते रहते हो, अपने दोस्तों को पूछते रहते हो, मुझे पूछते रहते हो, बहुत सारे स्टफी लुक पे आंसर है ऑलरेडी। द सेम थिंग गोज विद थिंग्स लाइक कफाल स्टूडियो। ये भी बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, उनके भी काफी सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे। वो अपने पूरा फोकस लगाते हैं। शशांक जो है कैप्टन हूँ वी कॉल, वो अपना पूरा फोकस लगा देते हैं वीडियोस बनाने पे। उनके वीडियोस काफी अच्छे हैं, तो उनके वीडियोस में से बैठ के नोट्स बनाओ। मेरे हिसाब से दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। जो उनके वीडियोस है शॉर्ट प्रिंसिपल्स पे, उनके पेंटर्स पे, उनके आर्टिस्ट पे, स्कल्पचर्स पे, जीके के लिए बहुत सारी वीडियोस है। कुछ ऐसे ही वीडियोस है जिसमें उन्होंने बहुत सारी टिप्स एंड टिप्स बताई है, एग्जाम के बारे में बताया, एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है बताया। पूरा देख लो, सब के सब वीडियोस देख लो, कितना टाइम है आपके पास। ओके, बोनस रिसोर्स नंबर 10। एक और बोनस रिसोर्स दे देता हूं आपको मैं, क्योंकि मुझे ये पता है, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है। ये अनदर बोनस रिसोर्स, दिस इज अगेन पेड। This is the NID Node ऑनलाइन टीचिंग फैसिलिटी NID has। NID का खुद का नोड करके एक ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनके ऑनलाइन कोर्स है बहुत सारे, 47+ लेक्चर्स है, टॉपिक्स है बहुत सारे कवर करते हैं। उसमें ड्राइंग भी सिखाते हैं, उसमें बहुत सारे फैकल्टीज है जो आपको PDFs भेजेंगे, मटेरियल भेजेंगे, बहुत सारी चीजें होती है उसमें भी। इट्स ओनली 5000 आई थिंक। मेरे हिसाब से इट्स गुड इन्वेस्टमेंट। DQ Labs एंड NID Node ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है। देखो ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है पता है, अगले 3 या 4 महीने में आपके पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री शॉर्ट होने वाली है। तो मेरे हिसाब से आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, the NID fees is something around 10 to 15 lakhs for the entire 2.5 years. तो अभी के लिए 10,000 is not going to be a big amount for you. 5,000 in DQ Labs, 5,000 NID Node। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके पैसे, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो उसके पैसे, ये सबके कंपैरिजन में this is a very low amount that I'm asking you, but you can invest. I'm not telling you to, I'm recommending you to। क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन आप जो जगहों से लोगे वो आपको ही बेनिफिट करेगा, क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है, आप कभी भी इसके लिए फुल फ्लेजेड प्रिपेयर नहीं हो सकते। The more information that you have, the better are your chances to be able to solve a problem or to be able to solve a question। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है तो इसमें इन्वेस्ट करो, अगर नहीं लगता है तो फ्री रिसोर्स तो मैंने आपको बहुत दे दिया ऑलरेडी। यूट्यूब चैनल के रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, वो यूट्यूब वीडियोस को अच्छे से देखो, हर एक चैनल को अच्छे से स्टडी करो। जस्ट डोंट गो एंड लुक एट रैंडम वीडियोस, फर्स्ट गो टू द वीडियो सेक्शन, लुक एट ऑल द वीडियोस दैट दे हैव, लुक एट द प्लेलिस्ट दैट दे हैव,
प्लेलिस्ट में स्ट्रक्चर करके दिया होता है कौन से जो टॉपिक्स पे कौन से क्वेश्चंस है वो पहले देख लो. तो सॉर्ट ऑल ऑफ दीज योरसेल्फ एंड देन मेक योर ओन नोट्स कि मुझे आज ये देखना है, कल ये देखना है, ये हफ्ते में मेरा टारगेट है कि मैं ये खत्म कर लूंगा या कर लूंगी, या अगले हफ्ते में मैं ये कर लूंगा. अपने खुद का टाइम टेबल बनाओ, अपने खुद का एक रूटीन बनाओ. मेक श्योर डिवाइड योर टाइम इन स्केचिंग, practicing, watching videos, watching movies, doing your tutorials, attending your classes, working. Try to sort yourself completely and make an entire routine for yourself जो आप दिन में follow कर सकें. Even for the friends, don't just limit yourself to being able to asking them for books and asking them for a lot of things like उनका मटेरियल या चीज का पूछना. सिर्फ मटेरियल पे अपने दोस्तों को लिमिट मत करो. ऐसा करो कि उनको अपने स्केचेस भेजा करो, रिव्यू करवाओ, उनको पूछो कैसा बना है, थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव लो. मैं तो दे रही हूँ आपको रिव्यूज, आप किसी और से भी ले सकते हो, दोस्तों से लो, मम्मी पापा से लो, सबसे लो. हर एक चीज रिसोर्स हो सकती है अगर आप उसको रिसोर्स बनाओ तो. और खुद को तो बना ही लो रिसोर्स यार. यू आर योर ओन competition, you are the best way to motivate yourself. That's the best tip I can give you. खुद को यूज करो as a resource. Try to focus on yourself. Try to focus on everything that you have done अभी तक. अपने आप को ये चीज के मोटिवेट करो कि आप कहाँ थे और कहाँ आए हो. मैं तो ऐसे करता हूँ खुद को मोटिवेट. अपने पहले का वर्क देखता हूँ, अपने आप को 5 साल पहले देखता हूँ कि मैं कैसा था, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ. Use yourself as a resource. So thank you so much guys. Today we are done with 9 resources that you might not know and I have told you how to use these 9 resources. So see you in the next video. Keep practicing and make sure that you join the dream team because we are having meetings regularly. I have started giving these people tasks regularly because I feel that because of the tasks I'm able to identify and review the sketches better because I know what everybody is doing on a similar basis. So my tasks stay on every day. If you feel you want to prepare for seed or NID and you want to practice every day. We also have a lot of meetings. हम लोग meetings कर रहे हैं अभी 2-3 बार. I give them questions to do. मैं ऐसे भी कर रहा हूँ कि मैं उनको कोई प्रॉब्लम दे देता हूँ, सॉल्व करने बोलता हूँ, फिर मैं बैठ के मीटिंग में रिव्यू करता हूँ. एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशंस, आइडिएशन डिस्कशंस, इनोवेटिव डिस्कशंस चलते रहते हैं. It's a very good thing. If you feel that you want to join our family, you are please welcome to. The link is in the description below. Smash that link and join the dream team. Take care, keep practicing and see you in the next video. एक और वीडियो आया सीट के ऊपर. उसके बाद we'll go to NID and उसके बाद we are starting with podcasts. Bye guys.